Okay. So now we are going to start with our chapter chemistry in everyday life. Okay. So what you are observing in this picture, which is shared on the screen, can anyone tell me? Whatever it is. बच्चे लोग मिट्टी में खेल रहे हैं, पानी में। जॉन्स लगे उनके हाथ में कीचड़। हाँ, actually, dirt लगा हुआ है. It is dirt all over their body and their you can say their clothes. So today we are going to study about the chemistry in everyday life. Okay. Chemistry, जब भी आप chemistry सुनते हो तो आपको क्या समझता है? क्या होगा? केमिकल्स। Very good. Chemicals. केमिकल का रिएक्शन। Chemical का reaction. And okay, ठीक है. So chemistry in everyday life means ये जो chemical reactions है, these are the chemical reactions which are occurring in our day-to-day life. Okay, so from this we are going to study one of the reactions which are occurring in our day-to-day life, which is what? Cleansing agents and mechanism of cleansing action. In starting, you have seen two pictures in which two girls are wearing a dirty clothes, है ना? So how we can wash this dirty clothes, or how that dirt comes out from the clothes? We are using different type of detergent, shampoo, And for cleaning. Cleaning agents. You can say cleaning agent, cleansing agent. Yeah, cleansing agent. Yes. Okay. So आपको कभी क्वेश्चन नहीं आया कि how these cleansing agents are work, what are the mechanism of cleansing agents, and what are the actions doing this cleansing agents on the fabric, that dirt is totally removed from the clothes? What are the components, what are the chemicals are using manufacturing departments that these dirts are removed? No idea, Students, ma'am. please try to interact with me. So we can use मैम एसिड वगैरह यूज करते हैं। but in starting we have seen the dirt on fabric. Yeah. Na? So to clean that dirt we cannot use acid. है ना मधुरा? Yeah, right. Yeah. So these are some cleaning agents. What are they? Can anyone tell me? Detergent, Yes. soap Yes. for our body. And what? And that third one is what? This one? टैमरिन जैसा लग रहा है। Not sure. Okay. So, This is. It is mulethi. Shikakai. Shikakai, Rita, Shikakai. mulethi. Shikakai. Yes, समझा भी। Okay. So cleansing agents are the agents or substances which are used to clean, which are used to remove stains, dirt, and all the things which are stuck in the fabric or stuck in any thing. So to clean the surface, to clean that area, we are using a cleansing agent. Okay. Earlier, in previous slide, we have seen that two were our synthetic and two were our natural. है ना? Because naturally soaps are not present, detergents are also not present naturally. Naturally, shikakai, ashwagandha, mulethi, this kind of we can say natural things are present. Or
jadi booties, we can say Ayurvedas, from Ayurvedas we can get that Shigakai. So can anyone tell me that where we can use Shigakai? For which purpose earlier Shigakai was used? For which purpose Shigakai was used? बालों के लिए एंड अच्छा अज्यूम पहले साबुन ही नहीं था, सोप ही नहीं था, डिटर्जेंट ही नहीं था, बट पहले भी तो लोग क्लोथ यूज करते थे ना. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द सोप, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द डिटर्जेंट, लोग खुद को क्लीन कैसे रखते थे? अगर उनके बॉडी पे मिट्टी लग जाए या उनकी बॉडी पे डर्ट वगैरह लग जाए तो वो क्लीन कैसे करेंगे? क्लीन कैसे करते होंगे? बिकॉज उस टाइम पे तो आर्टिफिशियली कोई भी ऐसा रिसोर्स नेचुरल थिंग्स से, जैसे शिकाकाई वगैरह से बाल धोते थे, ये सब चीजों का इस्तेमाल करके वो करते थे. वेरी गुड, वेरी गुड. आपको पता है शिकाकाई में सोप जैसा एक्शन करने का पावर है. शिकाकाई जो है पहले बॉडी को वॉश करने के लिए भी यूज किया जाता था. सिर्फ हेयर्स को ही वॉश करने के लिए नहीं यूज करते थे, बॉडी को भी वॉश करने के लिए शिकाकाई जैसी चीजें जो है यूज की जाती थी. बट हम अब इतने लकी नहीं है, हम अब वो नहीं यूज करते. हम आजकल आर्टिफिशियल सोप वगैरह ही यूज करते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आर्टिफिशियल और सिंथेटिक क्लींजिंग एजेंट्स. सिंथेटिक क्लींजिंग एजेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज व्हाट सोप एंड सेकंड वन इज व्हाट सिंथेटिक डिटर्जेंट. ओके, सोप एंड डिटर्जेंट एक जैसे दिखते हैं क्या? दे बोथ लुक सेम? नो ना. बट क्या दोनों का एक्शन सेम है क्या? हाँ, एक्शन सेम, एक्शन सेम है. दोनों हाँ, क्या फंक्शन करते हैं? सेम. दोनों भी धोने का ही काम करते हैं. हाँ, डिटर्जेंट से कपड़ा धोने का, सोप की बॉडी को साफ करने का काम करते हैं. very good. They both are what? They both are cleansing agent, and these both substances are used for removal of stains and dirt. One is from body and another one is from clothes and Clothes. Okay. So have you clear about what are cleansing agents? Yes. हाँ. Okay. मनीषा, मनीषा आप हो क्लास में? मनीषा, ये शोभा, शोभा, आपको हाँ. जो समझ में आता है आप वो हाँ मुझे है. रिप्लाई करो, है ना? ठीक है. सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लींजिंग एजेंट्स क्लियर है? क्लींजिंग एजेंट्स क्लियर है? आपको समझा क्लींजिंग एजेंट? हाँ, यस मिस. हाँ, ओके, ठीक है. अब क्लींजिंग एजेंट्स वी नो वाटर क्लींजिंग एजेंट्स, है ना? बट आवर मेन टॉपिक इज हाउ दिस क्लींजिंग एजेंट्स आर वर्क, व्हाट आर देयर मैकेनिज्म, कैसे वो काम करते हैं. मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे हमें कोई चीज पता चल गई कि हाँ कि हमें क्या करना है, एक शैम्पू है या एक सोप है, ये क्या करता है? धोने का काम करता है. बट एक्चुअल वो अंदर जाके एक्चुअली व्हाट दैट शैम्पू, व्हाट दैट सोप, what that detergent is doing, that stains are coming out from that fabric or from that surface, from that area. Are you getting my point? Okay. Now, so हम लोगों ने cleansing agents पढ़ लिया कि cleansing agents क्या होते हैं. There are two types of cleansing agents depending upon their chemical composition. Chemical composition means what type of chemicals are present in them. So they are classified as soap and synthetic detergent. हम साबुन से हम डिटर्जेंट से नहा नहीं सकते, हम डिटर्जेंट से बॉडी को वॉश नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल हार्म आवर स्किन, है ना? बिकॉज दे कंटेन्स वेरी कंसंट्रेटेड टाइप्स ऑफ केमिकल्स इन दिस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ क्लींजिंग एजेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द clothes. Okay, so these are the two types of cleansing agents. One is what soap and second one is what synthetic detergent. Synthetic detergents and soaps are classified on the basis of chemical composition present on this. ठीक है? So अब ये केमिस्ट्री आ गई है, यहाँ पर बहुत कुछ हमें अजीब अजीब सा नजर आ रहा है. ओके, लेट अस एक्सप्लोर इट. यू कैन सी आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, है ना? इट इज व्हाट इट इज एक्चुअली द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर सोप. ठीक है, जनरल फॉर्मूला फॉर सोप.
R means alkyl group. Alkyl group means CH3, C2H5 or anything which is made up of carbon and hydrogen. ठीक है? So it is what it is, alkyl group. And second part you can see it is that acetate part. It is COONO, sodium acetate. आवाज नहीं येत आहे. Structure contains, this structure contains two parts. ठीक है? One part is this R and second part this COON. ओके? यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है ये R क्या है और ये COON क्या है. Soap contains two parts. I am repeating. Soap contains two parts. One is alkyl, which is R. Alkyl, which is R. Second one is what? Carboxylate. You can say acetate, carboxylate, sodium acetate. You can say anything. And mainly, generally, it is known as carboxyl with sodium ions or carboxylate ions. वापस से एक बार रिपीट करियो. R is a alkyl group and COON is a carboxylate group. Is that clear now? अगर हम इस स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे, ऐसा बोला जाएगा, अगर इस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम लोग स्ट्रेच करेंगे, खोलेंगे, तो इट विल अपीयर लाइक दिस. ठीक है? स्टार्टिंग में मैंने बोला आर ग्रुप क्या होता है, CH3 या C और H, जिनके पास भी कार्बन और हाइड्रोजन होगा वो कौन से ग्रुप में आते हैं, आर वाले ग्रुप में आते हैं. तो तुम्हें ये इतना बड़ा पार्ट दिख रहा है क्या? यस मैम. है ना? इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, आर. और जैसे कि मैंने बताया आर को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप. इट इज व्हाट इट इज, अल्काइल ग्रुप. ओके? सेकेंड पार्ट इज व्हाट, सेकेंड पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, इट इज कार्बोक्सिलेट. दिख रहा है तुम्हें, COONA. इट इज व्हाट इट इज, कार्बोक्सिलेट. कार्बोक्सिलेट जो है वो दो पार्ट से बना हुआ है. वन इज व्हाट, कार्बोनिल. सेकेंड वन इज व्हाट, सोडियम आयन. Shall I move on? यस मैम. Yes. तो हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा, दैट RCOONA का. RCOONA contains two parts. One is R, second one is COONA. R वाले part को we have stretched and we get this structure. ठीक है? We get this structure. This वाला part and this वाला part. Okay? So this part is known as hydrophobic end and the carboxyl वाला part या carboxyl वाला part is known as what, hydrophilic end. R part is hydrophobic and COONA is hydrophilic. Are you getting? I will ask this question. Okay? So please remember it. Hydrophobic is R or CH group or alkyl group. Hydrophilic is carboxylate group which is COONA. Okay? So hydrophobic is a R वाला part and hydrophilic is carboxylic acid वाला part. Okay? Let's move on. What are hydrophobic and what are hydrophilic ends? Hydrophobic means the part which contains R, and hydrophobic means which part which is phobic, which have a phobia to the water. ठीक है? Phobia means what, डर, है ना, fear. Hydrophobia means fear of water. So our soap contains two ends. One is hydrophobic end, second one is hydrophilic end.
हाइड्रोफोबिक मीन्स दैट पार्ट which repels the water, बिकॉज इनको वाटर से डर लगता है, पानी से डर लगता है वो पार्ट को, तो वो पार्ट क्या करेगा, वाटर को रिपेल करेगा, अपनी तरफ से दूर भेजेगा। तुम्हें यहाँ पे रेड कलर का ये क्लाउड जैसा दिख रहा है ना, तो रेड कलर का क्लाउड वाला पार्ट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, एंड दिस ऑरेंज वाला पार्ट जिसमें उसने स्माइली बनाया हुआ है, दैट पार्ट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट। जैसा कि हम लोगों ने देखा, हाइड्रोफोबिक यानी क्या, उनको वाटर से डर लगेगा, तो हाइड्रोफिलिक क्या हो जाएगा, दे आर वाटर लविंग। तो हाइड्रोफोबिक जो है वो वाटर को दूर भगाएंगे, और हाइड्रोफिलिक जो है वो वाटर से जाके क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ठीक है, ये सारी स्टोरी हमें इसलिए जाननी है बिकॉज हाइड्रोफिलिक एंड्स और हाइड्रोफोबिक एंड्स का कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट है इन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन। इज दैट क्लियर? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्लियर है सबको? यस। ओके, अच्छा ये जो इमेज आपको दिख रही है वो क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो जरा, आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है, वो आपको कुछ भी थोड़ा भी समझ में आ रहा है क्या? देखो, एनीवन? मधुरा? एक यहाँ पे कुछ तो सरफेस है, उस पर डर्ट लगा हुआ है, ऐसा कुछ है। ओके, एंड आपको दिख रहा है ना, इसका 5 स्टेप्स हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इसके तरफ 5 स्टेप्स दिख रहे है ना? हाँ। तो कैन यू टेल मी कि ये स्टेप्स क्या हो सकते हैं? ओके, ठीक है। शामली? नो, समझ में नहीं आ रहा है। जयश्री? समझ नहीं आ रहा है। ओके, जयश्री? मैम देख के ऐसा लग रहा है, हाँ, फर्स्ट स्लाइड पे जैसे वो कुछ लंबा जैसे था, हाँ, फिर सेकंड हाँ। पे वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया, थर्ड पे थोड़ा हाँ। सा वो कर्व हो गया, एंड फोर्थ हाँ। पे वो हाफ राउंड। ये डर्ट पर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ, जैसे कि नीतू ने बोला बॉटल जैसे। दीज आर नॉट बॉटल्स, दीज आर द एजेंट्स ऑफ दैट क्लीनर, जैसे सोप हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए, इनके एजेंट्स है ये। जैसे वो बॉटल जैसे नीतू ने कहा वो दिख रहा है ना, वो एजेंट्स है सारे, मतलब समझो वो सोप है। अभी देखो सोप आएगा सेकंड वाले में, आजू बाजू सोप आ गया, उसके अराउंड में, सराउंडिंग में। सेकंड स्टेप में आपको दिख रहा होगा वो लोग उठा रहे हैं उसे, दिख रहा है आपको थर्ड वाले स्टेप में? क्लास? हाँ हाँ मैम, हाँ मैम। हाँ, उसके बाद फोर्थ वाले स्टेप में आपको दिख रहा होगा कि वो डर्ट को एक जगह उन लोगों ने इकट्ठा कर दिया है सर्कल के फॉर्म में, है ना? उसके बाद क्या किया, देखो पूरे डर्ट के आजू बाजू वो सोप के जो पार्टिकल थे वो आकर अटैच हो गए, सोप के पार्टिकल। यहाँ पे आपको दिखा ये डर्ट है, ग्रीसी डर्ट पार्टिकल रेड कलर का बीच में। ओके, ये आपको ये जो पहले वाले में आपको बॉटल जैसे दिख रहे थे, वो अभी देखो आपको ऐसे दिख रहे होंगे, येलो कलर का और स्प्रिंग जैसा नीचे दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे सोप के पार्टिकल्स। जो सोप के पार्टिकल्स में जो येलो कलर का पार्ट है, हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक हेड यानी जिसको पानी से प्यार है, जिसको पानी पसंद है। एंड हाइड्रोफोबिक एंड मीन्स, बोलो, हाइड्रोफोबिक ऐसे प्यार, मतलब पानी से नफरत है, ऐसे। हाँ, गुड, जिसे पानी पसंद नहीं है। तो देखो जो ऑयल होता है, जो ग्रीस होता है, वो वाले पार्ट को कौन से जाके लगेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट जाके पकड़ लेगा। एकदम देख रहे हो आप लोग, ऐसे सर्कल फॉर्म में जैसे उन लोगों ने क्या किया, हाइड्रोफोबिक पार्ट ने ऑयल को पकड़ा है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो पानी की तरफ है। जो आजू बाजू आपको लाइट ब्लू कलर का आपको सरफेस दिख रहा है वो वाटर है। ठीक है, ये हो गया एक सर्कल टाइप उन्होंने कुछ तो बनाया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं? मिसेल। ओके, इट इज नोन एज अ मिसेल, MICELLES, मिसेल। ऐसे ही देखो आपको बहुत सारे टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट दिखेंगे। ऑयल के देखो ग्रीस आपको दिख रहा होगा ऑयल का येलो येलो पार्ट में, और उसको ये जो देखो सर्कल एंड देन वो स्प्रिंग जैसा कुछ नीचे है, हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट, उन दोनों ने क्या किया, कवर कर लिया। और जैसे हम लोग उसको वाटर डालेंगे वो पूरा क्या हो जाएगा, वॉश ऑफ हो जाएगा, और जो हमारे जो कपड़े हैं या हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। सबको क्लींजिंग मैकेनिज्म समझ में आया?
बोलो। मैम ये स्टेप तो Yes, एक ma'am. बार रिपीट करोगे? ओके ओके, व्हाई नॉट मधुरा। देखो जैसे हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में देखा, एक डॉट है तो उसके आजू बाजू जो आपको दिख रहा होगा, ये सोप के पार्टिकल्स आके चिपक गए हैं। कैसे चिपके हैं? हाइड्रोफोबिक सेल से जो डॉट है वो लगा हुआ है, और हाइड्रोफिलिक जो हेड है उसका येलो कलर का, वो कहाँ है? पानी के तरफ है। ठीक है, ये हम लोगों ने एक जगह अगर ग्रीस लगा होगा तो ये ऐसा दिखेगा। अभी तो ऐसा थोड़ी कि एक ही जगह थोड़ा सा ही गंदा है ना। बहुत सारे मतलब जैसे क्लोथ जो होते हैं वो बहुत जगह से थोड़े 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 क्या होते हैं, गंदे होते हैं, डॉट उसमें लगा हुआ होता है। देन ऐसे हर जगह ऐसा देखो ये मिस्टेल जैसा फॉर्म होगा, जैसे यहाँ पे फॉर्म हुआ है वैसे देखो ये हर जगह फॉर्म होगा। अभी वो येलो वाला इज ग्रीस, इज डॉट, एंड दैट वो रेड वाला एंड वो चॉकलेटी कलर का जो नीचे का स्प्रिंग साइज है विच इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये देखो इन लोगों ने क्या किया, सराउंड किया उस डॉट को और सराउंड करके रखा है। अब जैसे हम लोग पानी डालेंगे ये सारा डॉट क्या हो जाएगा? वॉश ऑफ हो जाएगा। तो आपने देखा होगा वॉशिंग करते टाइम आपने मम्मी को या खुद भी, आप जब बड़े हो गए हो आपने खुद भी ये कपड़े वगैरह धोए होंगे, तो आपको पता होगा कि जब हम लोग सोप लगाते हैं गंदी जगह पे तो उसका कलर ना थोड़ा मिल्की टाइप हो जाता है, थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। देखा है आपने? और जब वो Yes. क्लीन हो जाता है तो पूरा का पूरा फेस निकल के आता है, फोम क्लियर पूरा बनता है। लेकिन अगर वो बहुत गंदा है तो जल्दी फोम बनता नहीं है। ये इसलिए नहीं बनता बिकॉज ये सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, उनको सराउंड करने में और मैकेनिज्म में बिजी होते हैं। ज्यादा डॉट होगा तो ज्यादा एक्शन करने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगता है। नाउ क्लियर मधुरा? Yes, ma'am. Thank you. Okay. So if you have any doubt in this topic, you can ask me freely. First, before asking the doubt, we have to summarize this which we have studied. What are the cleansing agents? है ना? There are two types of cleansing agents, natural and synthetic. Synthetic cleansing agents are classified on the basis of the chemical composition present on that, which is soap and detergent. Then we have seen the structure of that soap. Then we have studied about hydrophilic and hydrophobic ends of the soap particle. Then we see the mechanism of the mechanism of cleansing action of the soap or detergent. Okay. Now I am going to ask you something. You have to answer me. Okay. Neetu? यस मैम। ओके, आपको तीन इमेजेस दिख रही है ना? फर्स्ट वाली Yes. जिसका ऑयल ड्रॉपलेट लिखा हुआ है ना? यस मैम। ऑयल ड्रॉपलेट लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपको चार कुछ तो दिख रहे हैं, स्टेरेट आयंस करके तो कुछ लिखा यस हुआ है। मैम। वो यस। क्या है? ट्रेन है जहाँ वो तेल के ऊपर ऊपर रहता है पानी। हमने अभी इसके बारे में कुछ पढ़ा था कि ये सोप के क्या होते हैं। एनीवन? मैम प्लीज एक बार बोलिए, आवाज थोड़ा नहीं आ रहा है मुझे। ये सोप हम लोगों ने देखा कि नीचे ये ऑयल ड्रॉपलेट लिखा हुआ है, ऊपर वो क्या है? वो जो चार आपको दिख रहे हैं वो ऊपर क्या है? तो जैसा कुछ होता है। हाँ, वो तो लिखा हुआ है ना, वो तो नीचे है ऑयल ड्रॉपलेट, उसके ऊपर क्या है? फोम, फोम नहीं। हाँ हाँ अ, हाँ, ठीक है। सेकेंड वाले पिक्चर में देखो मधुरा, ये क्या मतलब ये किस चीज को ये लोगों ने सराउंड किया है? जो फोम या जो सोप के जो पार्टिकल्स है, इन्होंने किस चीज को सराउंड किया? ऑयल ड्रॉपलेट को। वेरी गुड, ऑयल ड्रॉपलेट को। अच्छा, ऑयल यहाँ पे आपको दो एंड देखो। हाँ, एक ये वाला एंड है और एक ये हेड वाला पार्ट है। तो जिससे ये लोग ऑयल ड्रॉपलेट को लगे हैं वो वाला पार्ट कौन सा है? हाइड्रोफिलिक एंड या हाइड्रोफोबिक एंड, कंफ्यूजन है। हाइड्रोफिलिक मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिंग मीन्स लविंग, है ना? हम लोगों ने हाँ, देखा था ये वाला हाँ, टॉपिक। हाँ, हाँ। तो ये कौन सा पार्ट होगा, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? फोबिक यानी जिसको पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिक। वेरी गुड, इट इज हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ द सोप पार्टिकल। एंड दैट ये सेकेंड वाला कौन सा पार्ट होगा फिर? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, गुड। एंड नाउ टेल मी द नेम ऑफ द थर्ड वन।
बोलो। मेरे सेल्स, माई सेल्स। माई सेल्स या मिसेल्स, इसका नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिया था कि these राउंड राउंड सर्कल टाइप स्ट्रक्चर्स आर नोन एज मिसेल्स। ये जब पूरी तरीके से जो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक एंड वाले जो स्पोक के पार्टिकल है, जब किसी डॉट को सराउंड कर लेते हैं तो दे विल फॉर्म व्हाट, दे विल फॉर्म मिसेल। ओके, तो अब ये वाले पार्ट को देखो और मुझे बताओ वो क्या है। ये थर्ड वाला पार्ट अब क्या है? मिसेल्स। हाँ, इट इज मिसेल्स। पहले क्या होगा, ऑयल ड्रॉपलेट आएगा, है ना, यही सारी चीजें इस पे बनी हुई है, और एंड में वो मिसेल्स बनाएगा। अब मुझे कोई एक मधुरा को छोड़ के कोई एक मुझे इसको एक्सप्लेन करके बताओ, जैसा तुम्हें समझा है वैसा बताओ कि ये एक्शन क्या है। इट इज वेरी इजी। So Ansari, your time is over. Yes. Just end it within 1-2 minutes. ओके सर, ओके। कैन एनीवन? मैम पहले मतलब नीचे ऑयल ड्रॉप रहेगा, ऊपर स्ट्रेन रहेंगे, फिर सेकंड में वो थोड़ा थोड़ा करके, हाँ, और थर्ड में वो मिर्सेल क्या है वो पूरा बनाते हैं उसके अंदर वो। ओके, गुड। और ये मिसेल्स कैसे गायब होंगे, इनको कैसे हम लोग निकालेंगे? बाय एडिंग देम इनटू वाटर। पानी में डाल के हम लोग निकालेंगे तो ये जो कितना डॉट है वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। बाहर हो जाता है। हाँ, so this is your assignment for today's topic. These type of questions will be asked in your exam. Explain mechanism of cleansing action of soap with a flow chart. You can use the steps which we have seen in previous slide. कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, एंड यू कैन मेक अ स्मॉल और छोटा सा एक फ्लो चार्ट आप बना सकते हो, एंड उसके बाजू में आप उसके पूरे की पूरे डिटेलिंग लिख सकते हो। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन देना है। एंड सेकेंड वन इज फॉर यू। I will not going to explain you. I am only going to read this question. Can we use the same soap for bathing as well as cleaning utensils or washing clothes? Or if we can use same soap, then why we can use same soap? If we will not, if we could not use same soap for these three things, then why this will happen? Okay, this will be your assignment.